Call us 01706340786 340 786 और हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे नदाकत खान साहब फ्रॉम K Law Solicitors and Raza Bhai Sahib. I'm sure they will be more than capable of whatever query you might have, whatever question you might have, they're more than capable of answering that. All you got to do is build up your courage and call us 01706 340 786. So रजा भाई, हम जो ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी एंड पे, जो आई पिक्ड अप एंड व्हाट यू सेड, भाई ये बात सारी जुबानी कलामी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी रिटन. लेकिन आई एम श्योर यू फेस मेनी टाइम, खास तौर पे अपनी हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत दफा हम इस चक्कर में फंस जाते हैं, वाकफियत है यार, ये वाकफकार है, इतने सालों से जानते हैं, या बरादरी है, ये है वो है, तो चलो ठीक ही होगा. So then that causes a lot of problems. So what do you say? That definitely, I think ये issue जो है, ये लोग deliberate नहीं करते, ये सिर्फ ये इखलाकी के हिसाब से वो करते हैं कि हम जानते हैं इसलिए. अब वो बुरा ना मान जाए अगर हम कहते हैं राइटिंग या कुछ पेपर पे लिखें, लोग बुरा मान जाएंगे, हालांकि बुरा मानने की बात नहीं है. हाँ, there are situations जहाँ आप टेनेंसी देते हैं किसी को और ज़बानी है, works out completely fine. लेकिन जैसे आपने you said before, जब issue होता है ना, then it's an issue. It's when the things start to go wrong. Yeah, when it flips, it flips. Yes. So ये issue है. So writing में बहुत ज़रूरी है. I think it's plus regulation के हिसाब से to comply, अगर बाद में problem clear करने के लिए writing में clarity ज़रूरी होती है. यहाँ पे little bit more, I think we have mentioned writing में होनी चाहिए बात, writing में होना चाहिए सब कुछ, काफी दफा कहा जा चुका. लेकिन यहाँ पे एक और जो बहुत दफा ये हमारी एशियंस की प्रैक्टिस है कि चलो आपस में बैठकर दो बंदे गवाह बना के खुद ही लिख लेते हैं, कर लेते हैं, साइन हो गया, ये जी हमारी अग्रीमेंट होगी. Where does that agreement go when the things go wrong? So जो लोग आपस में कर लेते हैं, खुद ड्राफ्ट कर लेते हैं, अगर they are not legally qualified to have the right clauses in there, then it's a problem. Would that carry any that weight? Can create, that it will have a weight as long as the requirements of a tenancy is fulfilled, as long as there is a tenancy in place. So usually, keeping it brief, there should be a rent for a fixed amount. It should be exclusive possession, so you have no one else has access to that, and it's a periodic payment, meaning it's a monthly or weekly or quarterly payment, something along those lines. So you can see that there's a routinely payment, and they're usually the basic requirements for the lease aspect. Look at the better way really is to go to the experts. Well, when it comes to residential, you can very easily get online tenancy agreements that cover you. You can even go onto the website on the government.co.uk, .gov.uk, and download a short tenancy agreement from there, quite a long one, and then you can make changes to it yourself. Okay. So the structure, the skeleton will be there. So you don't need to draft it from scratch, and that's free. But read what you're signing. Don't just assume it's all okay, because there are clauses in there which might favour the tenant more, and not you. And if you're a landlord, it's not appropriate for you. So then you have to decide what's appropriate and then come to an agreement that suits both of you. It's sometimes the language used in there is more of a legal term. Language. हर बंदा उसको समझ तो नहीं पा रहा. तो residential is a bit more easier to understand than commercial. Commercial leases are a bit more technical. I deal with commercial as well, but residential tenancies are a bit more simpler to understand. More straightforward. Yeah, they're a bit more straightforward, I think so. Okay, I think the other side we do want to touch. So far, we totally covered it from the landlord side. थोड़ा सा इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल रज़ा भाई को पता है कि W. स्मिथ वालों की रेडी स्टडी जो लीज मिलती है, जो टेनेंसी मिलती है, रज़ा भाई ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है. बहुत ही ज़रूरी है कि हर जो सर्टन बनी होती हैं जो टेनेंसी है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन को कवर करती हो. तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप स्पेशल क्लॉज रखना चाहते हैं या कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसको मस्ट ऐड करें. उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड क्लासेस रखी होती हैं, पता नहीं टू द समझते ना, कुछ वो अप टू डेट भी ऐसी होती हैं, पुरानी पड़ी लोग आके फिल करके साइन करके दे देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कितने अच्छे किया, क्या साइन किया, क्या नहीं किया. बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कुछ साइन करना है तो प्रॉपर विटनेस के थ्रू प्रॉपर होना चाहिए. जो मेन जो है ना, जिस तरह रज़ा भाई ने कहा कि वही उसमें रेंट है और रेंट कितना इंक्रीज होगा और बाहर निकालना हो तो कैसे निकलना है और बाकी चीज़ें जो असल से ये चीज़ें मेन है. लोगों को इतना चूँकि वो 10 पाउंड में हमेशा जो मेरी कैलकुलेशन में हमेशा आपको पता है मैं जो भी बात करता हूँ मैं अपनी मैं देता होता हूँ उसमें मेरी इस हवाले से ये कैलकुलेशन है और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इस वक्त अगर 100 पाउंड देंगे ना आपको वकील को
तो बाद में आप 1000 पाउंड का बचत हो जाएगी सही आपकी। सही और सही अब बेहतर यह है कि किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, प्रॉपर टेनेंसी एग्रीमेंट बनवा के हर चीज करके प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके फिर बंदे को मकान दें, क्योंकि आप 1 लाख 2 लाख की प्रॉपर्टी एक अनाड़ी बंदे को दे रहे हैं, सही। अगर वो ऐसा कोई कर देता है और बाद में आपको उसको निकालने के लिए पता है कितने पैसे लगते हैं आप, तो बेहतर यह है कि उसके बेहतर 1-2 महीने खाली पड़ रहे, आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे बंदे को दे देंगे वो तोड़ फोड़ के सबको रख दे। आपकी गाड़ी एक महंगी गाड़ी रखी हुई है, आप ऐसे बंदे को रेंट पे दे देते हैं जिसको पता है ये तोड़ देगा, तो आपको कितना आपको मिलेगा? जो हासिल होती है वो अनबिलीवेबल है। तो कोशिश करें कि ड्यू डिलीजेंस और पेशेंस के साथ चेक करके, जैसा रजा भाई ने कहा है, उसके बाद सारा कुछ करो। आपकी टेनेंसी जो है ना वो प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। और जो जिस तरह रजा भाई ने कहा कि अगर पैसे एडवांस लेते हैं या कुछ करते हैं तो प्रॉपर एक सीक्वेंस से रखें, क्योंकि जब आप कल आपने अगर कोई नोटिस सर्व करना है तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, फिर आपको फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने देखा है रजा भाई को, कई दफ़ा बंदे आते हैं तो उनको कहते हैं कि अभी आप ये करें, रेक्टिफाई करके उनको सर्व करें और हम कुछ टाइम पीरियड के बाद जाके करेंगे। आप वो नहीं देसी में कहते हैं कायदा लग जाते हैं दोबारा, तो वो नहीं हो। इस पे नज़ाकत भाई बहुत दफ़ा एक यही बात अगेन कि हम एशियन की सोच ऐसी को पता हो या ना हो, हम वैसे ही वो क्याफे लगाने अंदाजे लगा नहीं यार, हमें वकील को जाके की करना, एडी लंबी चढ़ी उन्होंने कॉस्ट तो बहुत पैसे लग जाने हैं, 400-500 पाउंड उन्होंने एम ही बढ़ा देना तो ला लेना ये वो। सो समथिंग लाइक दिस। अगर वो एक बेसिक आपने वो जो टेनेंसी जो ड्राफ्ट करवानी है, आप लोगों के पास वो कोई आता है तो क्या वो वाकई बड़ी लंबी चौड़ी कॉस्ट है? उसमें कुछ डरने या घबराने वाली बात है? रजा भाई बताएंगे। well it depends on क्या करवाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे डिपेंड है ना। अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है सिंपल बेसिक अगर कुछ फिर अगर बेसिक चीज वो तो रन थ्रू तो कर सकते हैं, it shouldn't cost that much। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट हैवी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं फिर जाहिर है उसको पढ़ना है, पहले हमने पढ़ना है, देन एक्सप्लेन इट। एक चीज रजा भाई ने, जैसा हम आज तो रेजिडेंशियल ये टेनेंसी की बात करें तो एक लीज में ऊपर मैंने बेशुमार लोगों को देखा है कि बंदे 1-2 लाख पाउंड का इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो लीज पे ले रहे हैं, और खुदा के लिए वो पता क्या करते हैं, वो खुद ही पेपर साइन कर देते हैं। मैंने कहा जी वो अपनी तरफ से बैठ के वो साइन करके पेपर, और बाद में जब उनका फटा पड़ता है ना, यकीन करें कि जब उनको देना पड़ते हैं ना पैसे वहां जाके, तो मैं उनको कहता है आपकी प्रोटेक्ट मकसद क्या है इन कागज का? ये डॉक्यूमेंट्स आप जो क्रिएट करें उसका मकसद ये होता है लैंडलॉर्ड के वाले से उसके राइट से और टेनेंट्स के राइट है। अगर राइट ही नहीं लिखे हुए, आपने कोई चीज एग्री नहीं की है, वो इतनी एम्बिगियस है, तो आपका क्या प्रोटेक्शन होगी? सिंपल इश्यूज बड़े बन जाते हैं, then it becomes 40-50-60,000 pounds। पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है ना हमारी। मैं ये कहता हूं एब्सोल्युटली। तो अब बाकी जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास, क्योंकि 5-2 पे जो आज असर की अजान 6:54 पे असर की अजान, तो उस पे अगर हम थोड़ी सी बात, अब जैसा मैंने कहा टोटली हमने कवर किया लैंडलॉर्ड की साइड से, टेनेंट वाइज, तो टेनेंट वाइज अगर उसकी क्या राइट्स, अगर वो एक जैसा आपने शुरू में बात की कि वो भाई अंदर काम होने वाला है वो करवा भी नहीं रहा, छत ऊपर से लीक हो रही है, बाथरूम में ये टूटियां काम नहीं कर रही हैं, तो फिर where does that person stand, where does the tenant stand? उसका मेरे ख्याल में रजा भाई अगेन वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए यही है कि वो लैंडलॉर्ड को कहेगा कि आप इसको ठीक करो। अगर वो नहीं ठीक करता तो उसका ऑब्वियसली काउंसिल उसके पास है, उसको कह सकता है, और वो मेरे ख्याल में उसके पास राइट है कि एक स्टेज पे जाके अगर वो पैसे खर्च करता है, वो मेरे ख्याल रजा ज़्यादा आपको बताएंगे, तो वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि मैंने रेंट नहीं दिया, ये मैंने चीज़ें ठीक रही हैं, इतना प्रॉपर फेयर लेके, क्योंकि इमरजेंसी थी यहाँ, तो लैंडलॉर्ड इंटरेस्टेड नहीं था कि वो बहुत ही इमरजेंसी थी उस वाले से। मैं थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ। There's lots of things which material जो एक्सेस जो टेनेंट कर सकते हैं। तो जब आप टेनेंसी एक लेते हैं ना मकान, गलत नहीं बता देना यार, और फटाई जब आप साढ़े 1-2 प्रॉपर्टियां लगी जब आप टेनेंसी लेते हैं फिगर पड़ गई जब आप टेनेंसी लेते हैं ना मकान की एज अ टेनेंट, तो आपके भी राइट्स होती हैं। जैसे लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स हैं, ऐसे आपके भी ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको मकान मिल गया तो आप जो मर्जी करें। यू हैव ओनली सर्टेन allowances within that property, and obligations you have to fulfill: pay the rent, pay the bills, not damage, paint every so often, depending on what's in the tenancy agreement. लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि राइट एट द बिगिनिंग जब आप टेनेंसी लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। अगर आप डिपॉजिट दे रहे हैं तो आपको डिपॉजिट स्कीम के इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए विद इन सर्टेन पीरियड। You should also get something called a how to rent guide। ये मिलती है लैंडलॉर्ड की तरफ से, और लैंडलॉर्ड डाउनलोड करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से। और how to rent guide gives a lot of information, मेरे सामने है। दैट प्रैक्टिस अपने लोगों में कितनी होगी, क्योंकि एक जो लैंडलॉर्ड वो देता है हर किसी को, सामने है।
हाँ. अगर आप ये देखिए इसमें क्या क्या है, it has lots of information in layman terms for tenants, Okay. which is very useful. So it talks about before you start things that are important. Checking the paperwork, for example. I'm reading it straight off here. Things the landlord must provide you with. It tells you. ये बताती है आपको as a tenant कि आप landlord क्या देना चाहिए उसको आपको. So things the tenant must do, things the tenant should do, must and should में फर्क है. Yes. Things the landlord must do, things the landlord should do, उसमें भी फर्क है. So इसमें काफी सारी चीजें हैं. At the end of the fixed period, if you want to stay, ये भी information है इसमें. It has lots and lots of information और ये free online मिलती है आपको. ठीक है. लेकिन लैंडलॉर्ड की मेन चीज़ ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सीधे रखें एट द बिगिनिंग, और अगर टेनेंट रेंट दे रहा है टाइम से और मकान की हिफाजत कर रहा है, देन देयर शुड बी अ प्रॉब्लम आइदर वे. लेकिन मैंने एक बार ये भी देखा, एक दो बार ये भी देखे हुए, जब लैंडलॉर्ड आते हैं और कहते हैं जी मुझे मकान चाहिए बेटे के लिए, उसने शिफ्ट होना है अब. हालांकि टेनेंट रेंट दे रहा है, मकान की हिफाजत कर रहे हैं, तो व्हाट्स सपोज्ड टू हैपन, then they can be still removed because मकान पे भी लैंडलॉर्ड का है. ये ना लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि मकान पे भी लैंडलॉर्ड का है. और मैंने ऐसे भी देखे लोग कहते हैं जी नहीं मकान मेरा है, I live there, I know, I appreciate, it's a home, उनका घर है, उन्होंने अपना टाइम गुजारा हुआ वहाँ, लेकिन प्रॉपर्टी इज स्टिल द लैंडलॉर्ड्स. लेकिन उसको भी लैंडलॉर्ड को फिर देयर गॉट टू बी अ सर्टेन टाइम पीरियड जो उसको नोटिस देना चाहिए. एंड ऑफ नोटिस यूज फॉर देयर ओन सेल्फ, वो फिर अपने लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं. रज़ा भाई एक चीज मैंने जो प्रैक्टिस में पे की है कि मोस्टली टेनेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें ना एक नोटिस बना के दे दें, और चूंकि मैंने कौंसल को देना है, बड़ा कॉमन है आपका, मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहते हैं जी कि मैं जो है ना कौंसल में वो जो उनकी जो क्राइटेरिया जिसके ऊपर नहीं जाने देते, तो अगर आप मुझे वो इशू कर देना, आप सेक्शन 21 या जो भी सेक्शन अभी वो 6A जो भी फॉर्म कह रहे थे, तो वो आप इशू कर दें तो हमें ये करेगी कौंसल इमरजेंसी में ना हमें अकोमोडेशन दे देगी. तो आप प्लीज इस तरह का, वो क्या स्टोरी है जी? वो ये बहुत कॉमन चीज है. और मैं इन अ नाइस वे, मैं जब लैंडलॉर्ड आते हैं ना कहते हैं जी मैंने नोटिस सर्व करना है, मैं उनको कई बार से बात पूछा है कि अच्छा ये टेनेंट ने तो नहीं कहा आपको मुझे नोटिस दो, हंसना शुरू कर देते हैं. हाँ जी टेनेंट ने कहा है कि मुझे नोटिस दो. मैं कहा ठीक, मैं समझ गया हूँ. और बेसिकली वो ये है कि टेनेंट समझते हैं कि लॉट टेनेंट्स थिंक कि अगर नोटिस हमें मिल जाएगा ना लैंडलॉर्ड की तरफ से, then we become what we call a priority need from the council. Councils go off priority needs. Yeah. तो ये नोटिस हम दिखा देंगे कि देखें मुझे नोटिस आ गया, I need a new house. So they were... Councils will not give you a new house on the basis of a notice. Okay. They want a court order. Okay. वो बल्कि आपको खुद कहेंगे बैठे रहो. You don't until your court order when you're not a priority need. So I'm just going to take you back a little bit. We've got about 3 minutes left. कि अगर जो लैंडलॉर्ड जो खाली मकान करवाने के लिए जो नोटिस देता है, you briefly mentioned of that, रज़ा भाई, कि does it have to be a certain condition कि if he can only ask them to leave if he wants the house for himself? There are conditions and grounds on which you can ask for the property back. जब आप क्लेम करते हैं ना नोटिस के थ्रू, प्रोसीजर होता है ना फॉलो करना होता है. पहले नोटिस सर्व करते हैं, फिर क्लेम फॉर्म शुरू करते हैं अगर टेनेंट नहीं गया. लेकिन जो क्लेम है वो ग्राउंड्स पे होने चाहिए, सर्टेन ग्राउंड्स. नाउ जो लोग समझते हैं कई ग्राउंड्स मैंडेटरी ग्राउंड्स होती हैं, मीनिंग जज को ऑर्डर करना पड़ता है एविक्शन रिगार्डलेस, मैंडेटरी जज पे. कई डिस्क्रेशनरी है जी. ठीक हो गया. तो ये चीज है. So one of the discretionary grounds is a discretionary ground is for your own requirement, but then you have to prove why you need it, your plans, etc. That's fine. Yeah. मैं रज़ा भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आप डेफिनेट करेंगे. आज रज़ा भाई ने टाइम दिया और इनकी फीस का बिल नहीं भेजना भाई. बिल्कुल. नहीं ये आपके आने की फीस में आपको भेजूंगा, बिल आपको भेजूंगा. नहीं वाकई बहुत शुक्रिया. I think this is a massive problem within our community and we have spoken about it as much as we could in the time we had. And but if again अगर somebody wants to get in touch with you and नज़ाकत भाई कुछ थोड़ा सा आप बता दें. वही आप NK Law Solicitors 17 वाटर स्ट्रीट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे सारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनमें NK Law Solicitors का सारा, आप जहाँ भी अगर आप गूगल पे जाएं या कहीं किसी पे जाएं तो आपको डिटेल सारी मिल सकती है. बाय ऑल मीन्स रज़ा भाई से भी अगर नाम गूगल करें, हमारे नज़ाकत खान, रज़ा जावेद,
तो आपको सारी डिटेल मिल सकती है और आप कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह एडवाइस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह Thank you, खैर, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया Thank जी। तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इसी यहीं से फिर अगले मंडे को फिर हमारी और आपकी बातचीत होगी, कुछ न कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे। मेरी तरफ से भी और रजा भाई से भी, नजाकत भाई की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत सलाम आपको जी। और क्योंकि ईद के बाद फिर मुलाकात होगी, ईद मुबारक भी सबको। ईद ईद मुबारक मुबारक। सबको। थैंक यू। Thank you. Allahu Akbar.